Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So we have a session today on sharing the best practices from Silicon Valley on what the startups they typically follow, and obviously they have a lot more success rate than the rest of the world. और जितना हम स्टार्टअप के तौर पे अर्ली स्टेज स्टार्टअप के तौर पे जितना जल्दी सीखेंगे इस बेस्ट प्रैक्टिसेस को उतना ही जो है वो आपको जो है वो यू गोना हैव इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर सक्सेस. तो मैंने नईम जफर मेरे दोस्त भी हैं and highly professional, or I'll let name and give a little background about himself. But he's one of the best, seasoned person as an entrepreneur, practiced entrepreneur his whole life, and also been teaching in entrepreneurship at University of Berkeley, one of the prestigious of his university in the world. So, name, take it from here, please. Yeah, I thank you so much. And hello, everybody. I'm normally in Silicon Valley, but today I'm coming to you from Portugal, from Lisbon, where was there for some workshop. But let me share my screen. And let's see. So basically, I'm hoping that we'll have a bit of an interactive conversation. Point is not to give you tons of slides, but more is to talk to you about your questions. So think about that as a possibility. Of course, our topic is what are the best practices to build a startup? And that's what we're going to focus on. Just to give you my idea, मैं लाहौर से हूँ और अमेरिका आया था मैं पढ़ने के लिए electrical engineering. So now I'll give you a bit background in the next slide, but basically I've been a professor for 19 years at University of California, Berkeley. I'm also a teach at Northeastern University. So I teach entrepreneurship and venture capital, so I'm familiar with the subject. Just give you a little bit more background. I went to Brown University in electrical engineering, University of Minnesota, worked for large companies, started multiple 7 startup companies, and QuickTurn invented the emulation technology, which is used for chip design. Veridicom invented the fingerprint sensor on your Mac or iPhone. Apple bought that. Silicon Design System, Pixis were software companies in chip design. Like I said, I've been teaching in Berkeley for 19 years. I started a company in mobile security, bought by Oracle, and then company in IntelliSense, which was also. यार अनवर उसको मैं वो म्यूट कर दिया. Yeah. So by the way, lots of company, lots of experience, so I can tell you more about this as I go. One thing which is people are confused, भाई startup होती क्या है? ये startup मतलब आप करियाने की दुकान खोलते हैं वो startup होती है? क्या आपका अब law firm खोलते हैं वो startup होती है? I think this helps us understand कि normal business over some time आहिस्ता आहिस्ता profit अपना increase करता है. कोई धक्के खा खू के कहीं ना कहीं रोजी कमा देता है. कभी कभी आपके पास ऐसा आइडिया होता है कि मार्केट कंडीशन ऐसी है कि आप अचानक ऐसे एक्सेलरेट कर सकते हैं. ये हर एक को नहीं ऐसा मिलता. अब करियाने की दुकान को नहीं है मौका ऐसा करने का. आपने सिगरेट पान की दुकान बनाई, ये नहीं कर सकते. रेस्टोरेंट भी नहीं कर सकते. लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी है वो हाईली स्केलेबल है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एआई है, फिर ये बात हो सकती है. तो इसको स्टार्टअप कहते हैं. Startup is when there's a potential for a rapid acceleration, exponential growth. And sometimes to do that, you have to make a trade-off. You may have to take money from investors, which means you may lose control. But guess who made that difficult decision? Apple, Google, Twitter, Facebook, they all did that. Uber, Amazon, they needed money to accelerate and quickly become the number 1 player. So ये बातें जरा आप ही सोचो कि what idea you have, is it a small business like the green line, or is it a startup which is the orange line? अच्छा, anybody who wants to interrupt, to raise your hand, or I think that should be the process. You raise hand, and then we'll unmute you, and then you can ask the question. Or I will call you to unmute yourself and ask the question.
अनम्यूट योरसेल्फ और घूंघट भी उठाएं। हाँ सही है। घूंघट से हम बात नहीं करते। अच्छा, अब ये है कि स्टार्टअप कंपनी में आपके पास दो स्टेज होती हैं। पहली स्टेज है, कभी ये वाकई आइडिया में कोई कुव्वत है कि नहीं, चलेगा ये नहीं चलेगा। तो आपने आपको कुछ सवाल पूछने होते हैं, उसको सेटिस्फाई करके हाँ यार कुछ चक्कर तो है, हो सकता है शायद चल जाए ये काम। जब आपने आपको कन्विंस कर दिया है, उसके बाद में आप एक दूसरा करते हैं टेस्ट, कि भाई इसका उसको उड़ सकता है या लॉन्च हो सकती है, उसमें क्या करना है। तो दोनों के लिए यू हैव टू एक्चुअली आंसर सम क्वेश्चंस। दीज आर द 5 क्वेश्चंस which will be necessary to know कि भाई ये लोगों के पास वाकई इसकी जरूरत है कि आपको गलत फहमी हुई थी। कैसे पता है कि आपको गलत फहमी है कि लोगों को वाकई इसकी जरूरत है? यू हैव टू डू मार्केट रिसर्च, यू हैव टू टॉक टू पोटेंशियल पीपल। फिर दूसरा सवाल है कि भाई मार्केट कितनी बड़ी है, 10,000 लोग देंगे, 1,000 लेंगे, लाख लेंगे, करोड़ लेंगे, कितने कितने हैं कितने। तो ये आपको आपको जवाब, सवाल का जवाब देना पड़ता है। फिर आपका कंपटीशन क्या है, इन लोगों का ऑल्टरनेटिव क्या है, वो ऑल्टरनेटिव में खराबी क्या है, आपको आपसे चीज क्यों लेंगे। फिर चौथा सवाल, विच हु नीड्स यू मोर, व्हाट इज द अंडर सर्व्ड सेगमेंट इन दिस मार्केट। का काम नहीं हो रहा पूरा, तो आपके बगैर काम नहीं होगा। जो तीन नंबर 1 2 3 4 को आप जरा सोच लें, लोगों से बात कर लें, मार्केट रिसर्च कर लें, फिर आपके पास होती है कि भाई मैं एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट कर सकता हूँ जो कि इतनी कंपेलिंग होगी कि लोग वाकई हमसे लेना चाहेंगे। हालांकि हम छोटी कंपनी है, हमारे पास पैसा भी कम है, लोग भी नहीं है, पता नहीं कल हो ना हो। अगर आप आइडेंटिफाई कर लें ऐसी कोई अनमेट नीड, दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग अ वाइट स्पेस। जब आपको कन्विंस हो जाएगा भाई वाकई वाइट स्पेस तो है, काम हो सकता है, फिर आपको ये मजीद कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं कि भाई वाकई बिजनेस बन सकता है कि नहीं बनता। व्हाट इज बिजनेस मॉडल, क्या है, हाउ डू आई मेक मनी, डू आई सेल ऑनलाइन, डू आई सेल फेस टू फेस। मैंने लड़के खरीदने वो अपने हायर करने हैं जो कि बेचेंगे। who what partnerships I'm going to do, what is my unit economics. Then you figure out to execute, what do you need from investors, what is your ask. So these all things give you the clarity you need to start a business. So many people वो पहले एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी से जंप कर देते हैं, भाई ये प्रोडक्ट बना लें यार, प्रोडक्ट बना लो, फिर देखो क्या होगा। एंड दैट्स अ मिस्टेक। मोस्ट पीपल फॉल डाउन just trying to do something without doing the proper market research. So it's very important कि आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें, इन 10 सवालों का जवाब लिखें। अब That's why you need the co-founders. कि तो जब अब आपके तो पास, मार्केट रिसर्च बल्कि आसान हो गया बहुत, चैट जीपीटी की वजह से, जेमिनी की वजह से। आई थिंक शुड प्लीज yeah, मेंशन दैट। yeah, that's a good point. So I think when we talk about market research in a few minutes, we will do that. But basically, you can tell ChatGPT, you know what, it's called prompt engineering. You have to say, ChatGPT, I want you to become a hospital administrator. I want you to, you're working at a hospital of this size. आप ये करते हैं, just as for example, if you are interested in selling something to the hospital, फिर सवाल पूछना कर दो जैसे आपको बंदा सामने बैठा हुआ है। भाई आप ये इस चीजें में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, what are the competitors you look at, how do you solve this problem, who has this problem, कितना आपने खरीदा था। So you start interviewing ChatGPT. More you tell GPT who is supposed to be, who it should become, more it will give you meaningful answers. And same thing with Gemini, you can do that too. Or if you want free one, then you can do Meta AI. So idea is that ChatGPT has really made it easy to do market research. यार ये हसन रऊफ को जरा बंद कर दिया। अच्छा, फिर ये मतलब थोड़ी आपको डिटेल बताइए, जो 5 सवाल थे इन्वेस्टमेंट वर्दी, मैंने मजीद जरा इसमें एक्सप्लेन किया अभी क्या होता है। सो आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोग अटेंशन कर रहे हैं पे, कि आप हलवा पूरी खा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो जरा मैं I'm going to be quiet so you can ask me question. This is I'm just explaining the are you investment worthy slide in more detail. So I'm just going to be quiet, so let you ask question. हाँ जी, घूंघट वाले, जो हाँ घूंघट पहले उठाएगा चेरा, वो सवाल कर सकता है। मारिया मारिया से देखिए, आपका सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। I run an education technology company
and basically we're trying to create the Dora the Explorer of Pakistani languages. We do this in 2D animation. So आपने अभी prompt engineering वाली जो चीज बोली थी, so for instance मेरी जो script development होती है, I try to incorporate generative AI in that because it just cuts my cost. So how do you train Gemini? Can you elaborate on that? So what do you want to ask Gemini? So I want to ask Gemini, let's say, to make a script in Urdu for KG to teach a child 1 से 10 की गिनती, a 3-year-old child. Okay, well that's about product development. Even then, let's start with the English script. फिर उसको translate बाद में उर्दू में करा देंगे. लेकिन you can say that I want you to become a teacher. I want to talk to a teacher. I assume you are a teacher to doing this. I want you to make a plan. I want you to do this. So you see, एक सवाल करें ना तो अच्छा माकूल जवाब नहीं आता. Prompt engineering का मतलब आपने 10-20 prompts देने हैं. बहुत से बातचीत करनी है. फिर जवाब अच्छा अब सब समझा दिए अब जवाब दो. And so start with just KG or just second grade just to see what it is. But what I'm talking about here is not product development. What I'm talking about here is आपने जो business start किया है, how do you know there is a need for this? How do you know how will you sell it? Can it really scale? कि ऐसा ना हो कि जिंदगी आप ज़ाया कर रहे हो. Have you are convinced, but most entrepreneurs are convinced, but their customers are not convinced. The investors are not convinced. So after मेहनत करके 1 साल 1.25 साल फिर समझ आती कि ये तो कहीं नहीं जा रही गाड़ी, धक्का नहीं सकता, गाड़ी के पहिए ही नहीं है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले वहां पहुंचने से पहले अपने आप को कन्विंस करो by doing market research. But your सवाल is different सवाल, which we have partially addressed. We can address longer about how to develop a product. But right now I'm focused on validating कि भाई market है या नहीं है. अच्छा मोहसिन, आपका घूंघट कैसा है? अस्सलाम वालेकुम. आप मुझे यार सुन शर्माते सकते हैं? क्यों आप लोग? क्या क्यों बिल्कुल, आप वालेकुम सलाम. बुर्का Please पहन के continue. बैठे हुए हो क्या? या बाथरूम में हो या क्या कर रहा था? शायद देखिए इंटरनेट का मसला. हाँ, अगर नहीं मैं आपको रिसेंटली आवाज जो है इंटरनेट को स्लो डाउन हो गया अच्छा कर दिया गया, तो उसकी वजह से काफी मसले हैं. तो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम. चलो ठीक है, चलो शारिक को समझता अच्छा, हूँ. मेरा नहीं ऐसी कोई बात नहीं. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बात की मार्केट रिसर्च की. उसमें आपने कहा कि जो टूल्स हैं, लैंग्वेज मॉडल्स, ये हेल्प आउट करते हैं इंसान को, लेकिन जो रियल टाइम डाटा है वो पाकिस्तान में फाउंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लाइक आप इन इंजन से जब बात करते हैं तो ये आपको रियल टाइम डाटा नहीं देते. और हमें अगर फॉर एग्जांपल कल हमने बात की थी कि एक कंपेलिंग जो है वो बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए, तो उसमें आपको डाटा बड़ा रियल टाइम चाहिए. जैसे अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो मुझे अगर इन्वेस्टर के सामने जाना है तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि 80% पॉपुलेशन ये रिक्वायर कर रही है, 70%. मुझे रियल टाइम डाटा चाहिए होता है. तो ये जो मॉडल्स हैं ये उसमें हेल्प नहीं करते. मैंने करके देखा है जेमिनाई का भी और चैट जीपीटी का भी, और ये उसमें कहते हैं पाकिस्तान ऐसी जगह है जिसके बारे में रियल टाइम डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज डाटा स्कैर्स है यूजुअली यहाँ पे. तो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस ठीक है, क्या आपका होनी पॉइंट हो चाहिए? गया, आपका सवाल हो गया. नहीं, गो अहेड प्लीज. यार I don't agree with you कि real time से जैसे why is real time? अब देखें आपका what you mean is relevant data or real time is something else. In real time is in other word अगर 80% लोगों की जरूरत थी 2 साल पहले, अभी भी 80% ही हैं. 46% तो नहीं होगा ना पिछले 2 साल में. तो why do you need real time data? I don't understand the question. You see you make अगर हम खासतौर पे जब बड़ी मार्केट है आपकी और उसमें जो है वो इतनी वेरिएशन तो 2-3 सालों में कभी भी नहीं आती. और अगर लीडिंग हम कंपनीज जो है ना, आपको मैं बता दूं, लीडिंग कंपनीज भी जो हैं वो जब भी पब्लिक भी जाती हैं, दे समटाइम मेंशन द रेफरेंस market research 3 years old, because people they know that thing that the people behavior is not going to change overnight. So bas it's and that's one thing. And second point is just because you have access to ChatGPT or equivalent or Gemini does not mean that you don't leave the house and talk to real potential customer. Eventually, you have to sell to customer. It will be criminal to start a company before you talk to between 50 and 100 potential customers. 50 and 100, because you need to understand कि उनके दिमाग में है क्या,
कैसे सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या क्या लेते चाहते हैं, लेंगे, कभी खरीदा है, प्रॉब्लम भी है, कितने पैसे देने को तैयार हैं. All that you have to figure out. So you have to do. It's ChatGPT and all that is good to start a conversation with and understand what questions to even ask. But if you haven't asked a single question, chances are you're probably firing in the wrong direction. And so I can specifically look at what example you have in mind, because in my whole life, I've never had a problem that I could not make a reasonable estimate, reasonable guess, and find the data investors need. So we can, if time is remaining, we can dig into your specific thing. And I'm pretty sure in this session, I'll come up with the answer, whatever answer you're looking for. Because let me just summarize by one sentence. In entrepreneurship, your answers don't have to be accurate. Your answers have to be reasonable. Investors know that you don't have resource of large company to get precise research, precise answers, real-time answers, whatever. But if you're making a reasonable assumption and you've talked to enough people, you have make reasonable, you can state what people need, that is very good. एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आगे yeah, we need to move on. Sharik, आप पूछिए. Ashok, thank you, guys, and I'll just try to keep it short. So basically, my name is Sharik. I represent Super Butler Limited, which is an AI company that we resolve the solution. We provide solution to the hospitality industry and make sure that all of the services are on the cloud without downloading the app. So जितनी चीजें आपने mention की नईम अभी regarding that using ChatGPT recent in the 6 months period, हमने उसी को use करते हुए short हम एक funding generate कर पाए थे UK से. But very soon we realized, अब मैं बीइंग इन्वेस्टमेंट वर्ती वाली चीज पे आ रहा हूँ, वेरी सून वी रियलाइज्ड कि पाकिस्तान मार्केट शायद हमारी इंडस्ट्री नहीं है. सो बीइंग अ B2B SaaS कंपनी, वी फोकस्ड ऑन द US, UK एंड द UAE मार्केट. ट्रैक्शन हमने UAE से जनरेट करी, पाकिस्तान में भी की, लेकिन पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल है from the hotels and current consideration as well. So my question of being investment worthy is, we do have a traction, we do have a model, we do have product, लेकिन हमारे पास रेवेन्यू नहीं है. So using the trial versions and using the traction, अगर हम एक US investor को present करते हैं as an angel investor, so that should be enough, or a paying customer will always have a added benefit on rather than the traction one. ये एक हमारा concern है, the paying customer. Yeah, so the answer is it depends on the investor. Basically, what you're selling is a story. स्टोरी कंपेलिंग होगी कि ये करेंगे, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये हो जाएगा. That's the story you're selling. The question is based on the investor. Some investor want to see a high level of proof. Some people criteria का proof तो हो जाएगा, लेकिन मैं तो खुद भी महसूस करता हूँ, तो I buy the story. So they're looking at, is this person can execute? ईमानदार बंदा है, मेहनती बंदा है कि नहीं है, ये कहानी सही है कि ये वाकई जरूरत है कि नहीं है. But some other investor कहेंगे भाई नहीं, आपके पास तो पहले पेइंग कस्टमर का, फिर मैं बिलीव करूंगा. Both are correct. वही ना, कुछ सास कहती है कि इसका आपकी MBA होना चाहिए, कोई सास कहती है जी कोई नहीं, मेहनत बंदा कुछ कर लेगा आपस में. तो सास पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लड़का पसंद करते हैं उसको. तो हर सास इज डिफरेंट. So my point is, आप look for a different रिश्ता. लेकिन आपकी स्टोरी साउंड होनी चाहिए. Yeah, please continue. Yeah, so the second point is the second 5 question I said are these. Hello. ये कहाँ से आ रही है आवाज? ये तारिक.pk तारसिल.pk hello कर रहे हैं. अच्छा, so this is the second point. The second 5 question I posed, this is some details on those 5 questions. The reason I'm not going through every bullet, because I verbally summarized these 5 points. I'm just pausing to say कोई बंदा कहे ये नंबर 4 समझ नहीं आई, बताओ जी नंबर 2 में ये कैसे करते हैं. So I'm, instead of going through everything one by one, because I want to answer more questions, I'm just showing you that these topics are covered in the few minutes ago. If any of them require more explanation, ask me now. अच्छा, अगर सबको समझ आ गई तो मैं आपसे सवाल पूछूं फिर. अच्छा, let's see, who should we ask? Who's willing to answer some questions? Since Sharik is the only one visible, let's ask Sharik.
So, Sharik, in your mind, what is unit economics and why should it matter? Yes, so thank you for asking me. So unit economics, for as far as I understand, what we have done in our case as well, that we break it down to the one hotel. So basically we are targeting hotels. So unit economics is that if we approach, that's my understanding, I might be wrong. So if we are targeting what we are earning from one hotel down to the one room and what we are spending on getting that as well. So that's what we understand and what we have done for our investors as well in the US and UK, that we have done unit economics in that way. No, that's very good. The only thing I will add to that, yeah, no, this is exactly right. You point है कि भैया, let's get down to the most atomic level. ये अच्छा बिजनेस है कि एम ही बिजनेस है? दो बिजनेस है. इस बिजनेस में रेवेन्यू पर कस्टमर 10 रुपए है और 1000 रुपए है. आपका खर्चा निकालने का 300 रुपए है. आपका ग्रोस प्रॉफिट 700 है, लेकिन आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 900 है. नॉट अ गुड बिजनेस. सेम बिजनेस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी सिर्फ 150 रुपए है. दैट्स अ गुड बिजनेस. So this is how investors analyze all the opportunities, looking at which business is more profitable, has better unit economics. So all of you need to learn what is that and how to compute it and what assumptions did you make to make it. अच्छा, उसमें मैं ये कहूँगा, जैसा एयरलिफ्ट है पाकिस्तान में, देयर मल्टीपल रीजन कि क्यों फेल हुई है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन जो फेल हुई है उनकी, जो स्टार्टअप जो है, आफ्टर रिसीविंग इवन $100 million was on unit economics. For every dollar they were earning, or every rupee they were earning, they were spending almost the same or more. तो ये बहुत जरूरी समझना है कि आपका आज में और कल सुबह कुछ अरसे बाद जब स्टेबल हो जाती है, वॉल्यूम आता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी. लुत्फुल्लाह, आपका सवाल है, आप You raise your hand, please, sir. अस्सलाम वालेकुम. जी हाँ, क्वेश्चन है मार्केटिंग के हवाले से. सर, मार्केटिंग में ये है कि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च है, क्योंकि हमने अभी जो कराची फेस्टिवल में हमसे तकरीबन 2 टन का वो डिमांड है अभी एक्सपोर्ट के लिए. तो ये हम इसी को भी मेंशन करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कि ये हमें इतना डिमांड मिला है और हम इसको देंगे. So you may have to translate for me, Anwar. कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग में मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करो, क्या पूछना चाह रहे हो? उर्दू में पूछें, थोड़ा सा बताइए. आप दोबारा पूछ सकते हैं सवाल. मैंने ये कहा कि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केटिंग में लॉन्च है, मार्केट में लॉन्च है, क्योंकि कराची फेस्टिवल में जो पार्टनर आए थे उसमें हमें 2 टन का ऑर्डर भी दिया है. एक दुबई से था, दूसरा नाइजीरिया से था. सही ये है. भी मेंशन करेंगे मार्केटिंग में. हाँ, बिल्कुल. कि भी आप जो है ट्रैक्शन क्या है, जो बात कर रहे थे ना, कि भी अब कस्टमर जो है, एक तो बात करने के कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट कैसी पसंद आई, मैंने कहा कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च है और हमें अभी मैं उसी की बात, कराची फेस्टिवल में जो था फूड जो इंटरनेशनल फेस्टिवल में था उसमें हमसे उसमें आपको ऑर्डर्स मिले हैं 2 डिफरेंट कस्टमर से. तो आपका सवाल ये था, नईम जफर, इनका सवाल ये था कि ये जो 2 ऑर्डर्स मिले, इनको हमें मेंशन करना चाहिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, और या जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम इन्वेस्टर के साथ. शॉर्ट आंसर इज हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए. लेकिन अब ये ना, जिसने ऑर्डर दिया है, मे बी दोज पीपल डोंट वांट इट टू नो कि सबको बताएं. उनकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपसे ले रहे हैं. तो आई थिंक यू डोंट नीड टू मेक देयर नेम नोन टिल यू हैव देयर परमिशन, बट यू एब्सोल्युटली से कि ए लार्ज कस्टमर फ्रॉम कराची हैज, हमें 2 ऑर्डर मिल गए 2 टन के, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलरेडी डूइंग इट. दिस शोज क्रेडिबिलिटी कि वाकई लोग आपसे खरीदना चाहते हैं. लेकिन उनका नाम इजाजत से लेने से बगैर बताना रिस्की होता है, क्योंकि वो आपको फिर कहेंगे ये आप तो हर को बता रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं कैंसिल कर रहा हूँ ऑर्डर. लेकिन बताना कि ऑर्डर आया है बहुत इंपॉर्टेंट है. और लोगों को आप लोगों को स्टोरी बता रहे हैं ना कि भाई काम ये लोग लेना चाह रहे हैं, ये लोगों को जरूरत है इस चीज की. So this was the 4 things we were going to focus on today, and it was in the invite also in the WhatsApp. Okay, you know, if you're targeting large markets with unique products, these are the 4 tests investors look at.
If you can pass these 4 tests, it becomes very easy to raise money. तो पहला टेस्ट है कि भाई आप किसको मार्केट कर रहे हो. मैं आप कहें जी मैं तो ये हमने नई चीज बनाई है कोई प्रोडक्ट, it applies to some people, and though there's only limited people like that. Let's say it applies to people which are having a heart transplant. I mean, how many people are having heart transplant? I don't know the number, but people who are having let's say some other disease like cancer is a much bigger market. So you have to figure out how big is the market and how do you define market size. So we'll talk about market size in 1 minute. Second thing is scalability. वो unit economics से connect होती है, क्योंकि अगर आपका unit economics favorable है, then you know that अगर आप हर unit पे आप profit कमा रहे हो, then investors want to put multiple money into this thing, so you can many units. So you have to measure, you have to test the unit economics. You start with some assumptions, you sell something, जैसे शारिक बता रहे थे, उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ कंप्यूट किया, फिर जब उन्होंने शुरू कर दिया अपना बिजनेस, शायद वो नंबर जो पता लगे वो चेंज कर दिए होंगे, वो जो आपने अस्यूम किए थे वो एग्जैक्टली नहीं थे. दैट्स नॉर्मल. So you start with some reasonable assumption, then you test them, then you keep changing them. So Sharik, tell us a little bit, what were your initial numbers and how did they change, and how did investors react to that? So our initial numbers were pretty high in terms of our onboarding. For one unit, we were spending a lot, close to $500 to $600 for one hotel to get them on board to spend. That includes everything, that sales cost and everything. And our revenue was very much less. For one unit, it was close to 200. So there was a delta of $300 to $400. Initially, our angel investors, they made it very clear that you have to come up with some kind of strategy. Then we realized that if it's a B2B SaaS model, so you don't have to sell only in UK, where we were initially, after Pakistan, we were registered. So we could have sold anywhere in the world. So from there onwards, we got an idea about selling it remotely, like through maybe LinkedIn and through PPC model, through any other. So that model of going to all the markets, like going to South America and North America, and in New York, we just started our pilot last month. So by doing that, our one unit cost model came down to about 200, and our profit gone up to $350. Now it happened over the period of 8 months to 1 year, but you were able to do that to show something to our investor. So I think this is the key point. The key point is 2 points. A, make some reasonable assumption based on your market research कि भाई हमारा कितना लोग देंगे, कितना खर्चा होगा, कितना customer acquisition cost है, what is the unit economics. Then as you start deploying the product, वो numbers change हो जाएंगे, and that's okay. Then you will know कि भाई किसको focus करूँ. Problem है कि खर्चा ज़्यादा, अगर खर्चा कम हो जाए तो फ्री हो जाएगा. अगर हम partnership कर दें इस कंपनी के साथ तो हमारा customer acquisition cost कम हो जाएगी. So these are the things which allows you to fine tune. So that's why it's very important to have understanding the unit economics. And the fourth point is you have to create some unique unfair advantage. Why will people buy from you when they cannot already buy from existing players? So you have to figure out how can we use technology, because what's brilliant these days, because of artificial intelligence, because of AI, because of internet, anybody, anywhere, Gujranwala mein baith ke aap wo istemal kar sakte hain technology. You don't have to be in Silicon Valley. So you have to figure out aap kaise apne aap ko advantage karoge, whether it's acquiring customers, whether it's selling, whether it's collecting payment, whether it's building the product. What is the use of technology आपको unfair advantage दे? So ये इसकी रेसिपी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर आपने बिजनेस स्केल करना है तो ये सिलिकॉन वैली में we'll go through the same checklist. हम सोचते हैं कि भाई if we can answer those 4 questions favorably, फिर कंपनी क्यों नहीं हम एक्सपेंड हो जाएगी. So the other thing which I want you to think about is draw this diagram. नहीं जरा प्रीवियस चार्ट पे जाना जरा 2 पॉइंट में कहना चाह रहा हूँ. एक तो ये कि जो लार्ज टारगेट मार्केट के जो अभी एक आई थिंक शारिक आपने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में रेवेन्यू बनाना मुश्किल होता है कि दे आर नॉट विलिंग टू पे और दे डोंट मूव फास्ट इनफ. पाकिस्तान में होता है, लेकिन पाकिस्तान में टेस्ट करके जो है जितना भी जल्दी हो सके आपको देखना है कि पाकिस्तान से बाहर कैसे सर्व कर सकते हैं, खासतौर मिडिल ईस्ट में, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूके वगैरह और यूएस वगैरह में. तो ये जरूर देखना है और फिर आपको कैसे स्केल करना है.
मैं तो ये समझता हूँ कि हर कंपनी जो है, जो मैंने कल भी कहा था कि हर कंपनी जो है, खासकर स्टार्टअप जो है, दे हैव टू लुक एट ग्लोबल market as a target market. But start from testing within Pakistan, go to Dubai or other places, get going, and then we always have to think how you're going to expand. Because startup, they're not going to succeed well अगर उनके पास substantial revenue growth नहीं है. उसी हिसाब से investors भी आएगा अगर वो देखेंगे substantial revenue growth आएगा इसका startup का. Yep, please continue. Yeah. So guys, again, we are here so we can answer your questions. I don't have to give you a lecture. So we can stop in a couple more slides and answer questions. I have lots of slides, that's not the problem, but I want to make sure I have enough time to answer your questions. वो यहाँ मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि हर कंपनी, how do you, I told you to raise money, to explain to customer, you have to simplify your story. So people can understand आप करते क्या हो. अब ये जो डायग्राम है बनाओ ना, simplifies आपकी कंपनी क्या करती है. आपके पास कोई ऐप है. What is the input to this app? What is the output to this app? Just for example, if you are, आप इस Uber को इस्तेमाल करते हैं, जैसे Uber, what is the input to the Uber? What is the output to the Uber के app? इनपुट होती है कि आप कहाँ जाना कहाँ है और मैं खड़ा कहाँ हूँ. These are the two inputs. आउटपुट आएगी ड्राइवर की डिटेल क्या है, how much will it cost me, and what will be my arrival time, कितने बजे पहुंचूंगा वहां. ये Uber as a simple, this is what it is. Inputs are मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ जाना है, 3 आउटपुट फटाफट निकाल देती है. So this helps us understand भाई करती क्या है. So I want you to be able to draw a diagram like that for each one of your app because it's not clear. When you explain करते हैं हमें लोगों को समझ नहीं आती भी करते क्या हो. So this is an input-output diagram which will be very helpful for you to explain your product to anybody. So Maria, let's take your example, right? कि आप की जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जो आप वीडियो बनाते हैं, उसमें आप कैसे देखते हैं कि भी क्या बेनिफिट होने वाला है और किसको बेनिफिट होने वाला है. अमीर पे. So yeah, sure. So because we uploaded on YouTube, तो उस पे बैक एंड पे काफी एनालिटिक्स हमें मिल रहे होते हैं, जिसमें स्पाइक्स एंड डिप्स भी हमें नजर आ रही होती हैं, थंबनेल्स की मेट्रिक्स मिल रही होती हैं. उसके अलावा हम लोग टेस्ट भी करते हैं जाके. हम प्राइवेट स्कूल्स में जाके व्यूइंग सेशंस करते हैं. हम देखते हैं कि बच्चे जब बोर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वी सी के ओके मे बी वी नीड टू मेक दिस पार्ट मोर फन और रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियोस. हमारे जो फिजिकल गेम्स हैं वी यूज अ 3 टेस्टिंग अप्रोच, जिसमें पहला प्रोटोटाइप बना के हम टेस्ट करते हैं, दूसरा और फिर तीसरा फाइनल वर्जन जो होता है स्कूल खुद ही टेस्ट करता है. सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन टेस्टिंग. तो हमारी लेकिन वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? ये जो आउटपुट जो डायग्राम शो कर रहा है, दीज आर द वैल्यू प्रोपोजिशन. जब वो आपकी वीडियो को देखता है, उनको क्या फायदा हो रहा है, पेरेंट्स को क्या फायदा हो रहा है, बच्चों को क्या फायदा हो रहा है, ये वैल्यू प्रोपोजिशन इस तरह आपने सोचना है ना. बेसिकली Yeah, डायग्राम का so मकसद यही है कि आपको एहसास हो कभी आपका कस्टमर जो है, टारगेट कस्टमर इवेंचुअली जो है, वो क्या बेनिफिट ले रहे हैं, बताइए सर. जी. So the children learn Urdu at an earlier age as opposed to when they're learning it in private schools in Pakistan. The parents have to spend less time on average teaching their child basic Urdu. मतलब after school time की मैं बात करें. और एक और चीज जो आप मिस कर गए हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग. बच्चे जो हैं, जो आपने मुझे बताया था जब मैं आपसे मिला था, कि जी बच्चे जी जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग छोटी सी उम्र में वीडियोस को देखने से शुरू कर दें, बजाय इसके कि आम कार्टून वॉच करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस बच्चे के फ्यूचर के लिए. चलें तला, आप कॉल के ऊपर या go ahead, नहीं, on next one then we'll cover some other question as well because we could run out of time. Yeah, we can address Talha. Talha, you may be. वालेकुम सलाम. आप जरा बताइए कि अब क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है इसको देखते हुए, इस चार्ट को देखते हुए, क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है. देखिए ये थोड़ा क्रिटिकल है
क्योंकि जाहिर है बच्चा जो है ना वो क्यों कैसे सारी चीजों को देखता है, मतलब वाई वो स्कूल आपके स्कूल वो इन चीजों को पढ़े या इन वीडियोस को जो है ना वो देखे। चला थोड़ा सा बता दें कि आपकी सर्विस क्या है ताकि सबको पता चल जाए, फिर उसके मुताबिक हाँ। Okay. Basically, my name is Sarma. I am the founder of Edulution. This is online teachers marketplace platform. हम पाकिस्तानी टीचर्स को ऑनबोर्ड करते हैं प्लेटफॉर्म पे और दुनिया भर के बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से लाइव ट्यूटरिंग 1-on-1 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स को अपने ON11 एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो इट्स अ जूम इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म और लाइव 1-on-1 ट्यूटरिंग होती है, ग्रुप भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं कि अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है किसी भी क्लास का और वो अपने पसंद का टीचर, इट्स लाइक एन अमेज़न ऑफ टीचर्स या ऊबर ऑफ टीचर्स कि आप एक क्लिक के ऊपर अपने पसंद के टीचर को ढूंढें और उसके अंदर जितने डेटाबेस में टीचर्स हो रहे होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं, उनकी प्राइसिंग होती है कि वो पर घंटा पढ़ाने के कितने पैसे लेंगे। और ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री कि अगर आप मिडिल ईस्ट में खोलेंगे तो वहाँ का रेट अलग है, आप US में खोलेंगे तो वहाँ का रेट अलग है, वहाँ अगर पाकिस्तान में खोलेंगे तो सही। अब वैल्यू प्रोपोजिशन पे आ जाओ। और तुम्हारी क्या ये बता, ये आपकी ऐप है ना, यहाँ लोग क्या इनपुट करते हैं और बात आपकी ऐप क्या आउटपुट करती है, बताओ। देखिए हमारी अभी ऐप नहीं है, इट्स अ वेबसाइट मॉडल एंड अभी हम वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं। तो उसमें ये है कि टीचर्स ऑनबोर्ड करते हैं। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट को अगर आसानी से टीचर हमारी वेबसाइट से मिल सकता है पढ़ने के लिए, ये हम इन कर रहे हैं, राइट। एंड उसका आउटपुट ये है कि बच्चे के जो रिजल्ट हैं वो हमारी वेबसाइट से अगर पढ़ता है तो उसके अच्छे आते हैं, दैट विल बी द आउटकम। उसकी प्राइसिंग भी जाहिर है कंपेयर टू द अदर जो वेबसाइट है उससे हमने कम रखी हुई है ताकि इंटरेक्शन फॉर द फैमिलीज एंड फॉर द पेरेंट्स को ज्यादा होता है। So I think in my mind it should be simpler than what you're saying. Yeah, exactly. अगर मैं थोड़ा समराइज करूं क्योंकि I know what he's doing. तो 3 आउटपुट हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स को जो parents they struggle sometimes, their kid is not passing physics or chemistry or struggling in a subject. They will pass that subject because now they're getting tutoring. Number 2, they will get that tutoring service a lot cheaper because पाकिस्तान में बैठा हुआ टीचर जो है वो सस्ता पड़ेगा बनिस्बत। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए $80 पर आवर पे कर रहा था जब उसको वो केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। तो rather than $80 maybe they would pay only $20 using telehealth service. So affordability is number 2. Number 3 is if the teacher is really good, the student could get not only pass but also could get good grades as well. So I'm trying to translate what I'm hearing into something which makes sense to me. So I may be wrong, but I think we are talking about input is simple and then output will be something like you input the detail के student की detail है, कौन सी क्लास में है, क्या चक्कर है और किसको issues हो रही हैं, फिजिक्स में हो रही हैं, किस में हो रही हैं, आपको ट्यूटर की डिटेल आप करते हो और cost and then some kind of a schedule. These two things come out. So this is my understanding of what you told me. I may be wrong, but this simple diagram avoids लंबी कहानी जो सुना रहे थे आप मुझे, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये है किसी को स्टूडेंट की स्ट्रगल हो रही है, पास नहीं हो रहे, हमारी आप वेबसाइट में आए, ये 2 चीजें डालें, आपको 3 चीजें ठक से हमने आपको दे देंगे and we can facilitate. तो इसमें वैल्यू प्रोपोजिशन को कहाँ पे आप फिट करोगे? Yeah, value proposition is not part of input-output diagram. That's a separate thing. But the value proposition. So I think that's the key. ठीक है, बिल्कुल सही। Yeah. So input-output is just to understand the product. This is your solution slide. The value proposition is a different slide. कि इसका फायदा क्या है? इसका मतलब है कि भी करते क्या हो? उसका लोग जवाब नहीं, लोगों को people have most problem explaining what they do. वो लंबी complicated कहानी सुनाते हैं हमेशा। सही। So this is to simplify कि आपकी product क्या है भाई? फिर मुझे बाद में बताना इसका फायदा क्या है। अच्छा, so again the next topic I was going to a little bit focus on was this unit economics, because unit economics is all about what is the cost profit of each unit. A unit could be आप जैसे if you're a service provider, could be per client, could be per store, could be आप ये बेच रहे हैं product, like in this Sharek's case is per hotel or per hotel room. So when each hotel पे
आप $30 महीने का प्रॉफिट बन सकते हैं, देन यू नो अगर होटल के पास 100 रूम है या 200 रूम है, देन यू कैन एस्टिमेट कितना प्रॉफिट हो सकता है. सो इट्स गेटिंग दैट क्लैरिटी. सो the concept which you want to understand is what's the difference between variable cost and fixed costs. Variable costs are the costs which are only happen जबकि आप यूनिट आप एक प्रोडक्ट को बेचते हो या सर्व करते हो. सपोज यू आर ए प्लम्बर, आप किसी कोई प्लम्बिंग प्रॉब्लम होती है, घर में पानी आ रहा है, टूट गई है, आप बंदे को बुलाते हो, तो देखें वो आपको लेट्स से वो चार्ज करते हैं आप कस्टमर से $1000. जो बंदा सर्विस करने आता है मोटरसाइकिल का, उसको आप देते हैं $300, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट इज $700. सो दिस जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द यूनिट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और COGS. So this is the simple 2 or 3 terminology I have to learn. कि मेरी what is my revenue, what's my cost COGS, and then fixed costs are the one which are do not change depending on how many units do you sell. जैसे आप देख लें किराया, marketing cost, आपकी मैनेजमेंट की सैलरीज, they don't change whether you sell 1000 unit या 2000 unit. So those are fixed costs. So understanding what is variable cost versus fixed cost is also something you should have. It's not complicated. I just told you it's very simple. The third thing, and maybe I'll stop after this one, is to understand the concept of churn. I'm giving you these 2 or 3 terminologies so you can Google them, you can learn them, because before you go raise money, you should know these things. लेकिन अगर एक बकेट हो, उसमें बेशुमार सुराख हो, तो आप जैसे पानी डालेंगे वो पानी निकल जाएगा. This is called churn. अगर आप 200 न्यू कस्टमर लेकर आते हो हर महीने और 125 उसमें से आपको छोड़ के चले जाते हैं, you have a very high churn rate. फिर अगले महीने सिर्फ 25 रह गए लोग, फिर दोबारा आपको लाने पड़ेंगे. So good businesses, online businesses, इनका जो business model होता है recurring services का, they're very concerned about churn. Every business has some churn. 10% per year, 20% a year, normal. Some business could be even higher, but you need to think about what is my churn rate. You need to measure it. So since Sharik is the only one without the camera on, I'm keep asking him the same question. Sharik, share with us, did you talk about churn before you started? Did you compute it? Were you surprised? Did you measure it? Did you improve it? What do you know? So obviously we are a young company where we have very few clients, but yes, when we did our initial market research, it was very clear that in the hospitality industry, everything in the world, hospitality on the hotel and the hospitals, these were the 2 industries which are very slow moving. And even after COVID impacted everything, they were very reluctant in changing their technology. So what happens that once they get on board any particular technology, they don't move it from. The churn rate in the hospitality industry was very low. It was based on our research, it was close to 10%. So on the safe side, we kept 20% in our financial forecast and everything. But when we went into the market, the hardest thing was, you're absolutely right, getting them on board. But we have got more than 10 plus, close to 15 different hotels, one in US, few in UK, few in Pakistan, and we had 0 churn as of now. So based on what we did, you are right, when you do the market research, based on that, we did double. But at the end of the day, as of now, we don't have any churn. So that was our learning. Yes, Yeah, it will come. Yeah. Point is that you thought about churn, you made some assumption. Yeah. 20% log is 20% per annually is talking about. It could be monthly, it could be annual. Yes. But assuming that अब देखें ना, आप उसको if you're आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, you have 100% churn every year, because जो लड़के जो पास कर गए ये फेल हो गए, दोबारा तो नहीं आएंगे दोबारा. So it's 100% churn, and that's okay. Each business is different. Yeah. So you just have to know कि वो churn होता क्या है. Acha, yeah, since we have 10 minutes left, I don't want to give you too many slides. I have maybe the key point I'm making is कि आपके startup जो करते हो ना, is a basically series of lots of little experiments. जैसे शारिक भी कह रहे थे, they made some assumption, they got 1 or 2 customers, they भाई हुआ कितना निकला. So you design these experiments because you're trying to convince yourself first and then investors कि ये वाकई गाड़ी सही तरफ चल जा रही है.
So these called proof points. Proof point is आपका assumption होगी कि हमारा churn इतना होगा. Assumption है कि हमारी customer acquisition cost इतनी होगी. हम इतने पैसे में बना सकेंगे. इसको एक जॉब खत्म करते हुए या चीज बनाने के जो भी लगते हैं. These are all assumption. So startup is normal. You do bunch of assumption and you test your assumption, and some of them work out and some of them don't work out. That's how you get clarity in your head. And once you have clarity in your head, क्या किया? क्या पी लिया आपने? I'm trying to find which one is. Here we go. I found it. Muted it. So let me Okay, please pause here. Let me make sure I can answer some questions because I don't want to give you lambi kahani. Any things people want to understand, they want to discuss more till. So, Ubaid, you want to share your input output just verbally? Assalamualaikum. My name is Ubaidullah Khan and my startup name is Gen Z. Basically, हम लोग हाई परफॉर्मेंस फाइबर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. अगर सेगमेंटेशन की हम बात करें, ऑटोमोबाइल्स के लिए हम जो है फाइबर के पार्ट्स बना रहे हैं जो लाइट इन वेट है, जो हमें फ्यूल एफिशिएंसी में जो है ना काफी हेल्प आउट कर रहे हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है. बट पाकिस्तान के अंदर ये कार्बन फुटप्रिंट वो लोग नहीं मानते, लेकिन हम उसको उसी फाइबर में हाई स्ट्रेंथ देते हैं. लेकिन अगर आप सेगमेंटेशन में डेमोग्राफिक बात करें तो हम लोगों का ये कि हमें इसको बाहर एक्सपोर्ट करना है ताकि हमसे बाहर के, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं सस्टेनेबिलिटी को ज्यादा मानते हैं, जो हमारे अंग्रेज लोग हैं मोस्टली ना. तो हमारा जो अभी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है कि हम 80% जो सिंथेटिक फाइबर अलॉन्ग विद 20% नेचुरल फाइबर द बनाना फाइबर, इसको हम ब्लेंड करके प्रोडक्ट बनाएं तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें. क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है सस्टेनेबिलिटी नहीं चलती, कार्बन फुटप्रिंट वो नहीं समझते कुछ. तो हम लोग वो रीच आउट कैसे कर पाएंगे बाहर, एक्सपोर्ट बाहर पिच कैसे कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबल जो है. Yeah, I need to ask more question. क्या आपकी product है? Is it software? Is it physical? How does it work? ओके सर, बेसिकली टेंजिबल प्रोडक्ट्स है, गाड़ियों के बम्पर्स है. अभी बेसिकली हमने बसेस के जो पार्ट्स होते हैं ना, फ्रंट पैनल, बैक पैनल, डोर्स, द रूफ, उनको हमने मार्केट को कैप्चर करा हुआ है. वो क्यों करिए हुए कैप्चर? क्योंकि योंगडोंग डेवो ऑलरेडी जो है ना फाइबर के पार्ट लगा रहे हैं. तो ड्राइवर्स को पहले से अवेयरनेस है कि फाइबर के पार्ट लग रहे हैं, तो वो जब टूटते हैं तो वो हमसे आके बनवाते हैं. उनको नहीं पता कि सस्टेनेबल है फाइबर, उनको ये नहीं पता. उनको पता बस फाइबर के बन रहे हैं, लाइट इन वेट है, जिससे उनको फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है. अब वो इससे आगे नहीं सोचते कि फ्यूल एफिशिएंसी से कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है. तो लेकिन अगर हम ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी हमें मिलेगी लाइट इन वेट गाड़ियों के पार्ट से, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, अगर वो और उसको कहते हैं सस्टेनेबल नहीं, आप ग्लास फाइबर से ज्यादा ऊपर जाए तो हम उसके अंदर ब्लेंड कर सकते हैं नेचुरल फाइबर, जो कि 100% जो है ना बायोडिग्रेडेबल है. तो हम हमारा आगे विजन So, I think you answered the question. Basically, in car के parts and bumper हो गया. Yeah, so my point is to go to a foreign country and start selling is tricky. Ideally, you want to find a partner who already has established channel. They already people trust them and sell with a partner. And partner will take whatever 30%, 40% of the price. But maybe you can price them what market will do. But before you find the target partner, you should visit that country after some market research. किस country में लोग इसकी लेने को तैयार हैं. And you have to go talk to some customer, understand why they want to buy, what's their concern, how much do they pay, what else have they looked at. So those questions, till you have understanding in your heart, it's very hard to come up with this strategy. People waste a lot of money trying to sell in other countries without doing the market research. So ये जो subject है ना, go to marketing जो है नहीं, this is a very important subject. I believe we should have a separate session on. Yeah. Because every company struggles there. Even in the US, they struggle a lot as well. Yeah. तो पाकिस्तान में तो और ज्यादा, खासतौर पर अगर आप बाहर जाना चाहते हो, बाहर की मार्केट को एड्रेस करना चाहते हो, तो we'll do another separate session for that thing. कि कैसे आपको चैनल्स ढूंढने चाहिए, कैसे आपको वो उसको एंगेज करना चाहिए, वगैरह वगैरह. So with that said, let's take another couple more questions before we run out of time. कोई और सवाल है किसी के पास? Parcel? Yes, sir. May I ask the question, sir? Yep. Sure, sir. Tarsil.pk, sir, ये हम B2B SaaS एप्लीकेशन है और स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस को हम सोल्यूशन दे रहे हैं, ऐसी बिजनेसेस को जिनके कोर एक्टिविटीज में फील्ड ऑपरेशन शामिल है. मींस उनके स्टाफ ने फील्ड में जाना होता है
और वी गिव देम मोबाइल ऐप, और एडवांस जो है उनके पास क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, और वो उनको मैप पे ट्रैक कर सकते हैं, वाइल जो फील्ड स्टाफ है वो उसी मोबाइल ऐप पे अपनी डिलीवरीज पंच कर रहा होता है, कलेक्शंस पंच कर रहा होता है, और वी मेक देम पेपरलेस एज वेल। जी इसमें सर जो मेरा क्वेश्चन है, इससे पहले हम एक कंपनी को अपना यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, बट सिंस फ्यू डेज और फ्यू वीक्स आई हैव अ थॉट कि हम एक कंपनी को बेसिकली पर यूजर सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, और उसमें वेरिएशन आती है इस तरीके से कि सम टाइम कंपनीज, बल्कि मोस्टली वो शुरू में हमसे 2-3 यूजर्स बाय करती हैं, अपने जी एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, अपनी टेस्टिंग करती हैं, 1-2 महीने गुजारती हैं, और उसके बाद फिर वो नॉर्मली ये होता है कि वो फुल फ्लेज अपनी पूरी टीम ऑन बोर्ड करते हैं। जी तो वो जो एक सब्सक्रिप्शन है फॉर 1 मंथ पर यूजर, हमारा यूनिट वो होना चाहिए यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, नहीं या कि हम उस एक बिजनेस को ही एक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, कंसीडर unit करें? economics should be done when business is a stable business. In the beginning, ओके। there's a lot of variation. कुछ लोगों को डील दे रहे हैं, कुछ को हाफ प्राइस दे रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ को कर रहे हैं. हाँ। Those are considered या market costs. So unit economics है कि जब ये जरा ठहर जाएगा, when think business stable हो जाएगा, उस वक्त profitable business होगा कि अच्छा high profit, medium profit, low profit, what kind of business? So in the beginning, the data is not important for unit economics. यूनिट इकोनॉमिक्स इज रेलेवेंट, बिजनेस स्टेबल हो जाएगा फिर कितना प्रॉफिटेबल होगा. सी देखिए ना, आपको इसकी क्लैरिटी आपके अपनी जहन के लिए है मोर इम्पोर्टेंट देन कस्टमर देन द इन्वेस्टर. व्हाई स्टार्ट ए बिजनेस जो कि 1000 रुपए का आप नोट 950 रुपए का बेच रहे हो, दैट्स अ टेरिबल बिजनेस मॉडल. आपका रेवेन्यू तो विल गो अप लाइक दिस कि एवरीबडी विल बाय 1000 रुपए का नोट 900 रुपए दे के आपको. But that's a bad business model. So you want to understand, is my business model good? Is my unit economics good? In the beginning, like you said, some people buy 1 license, 2 license, yeah, those are just marketing costs. Don't worry about those. लेकिन जो सवाल था नहीं, वो ये भी था कि इनको क्या कंसिडर करना चाहिए जब यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं स्टेबल बिजनेस के लिए, पर यूजर बेस. जब कहते अभी सब्सक्रिप्शन आ रही हो तो पर यूजर आ रही है ना. अब फर्ज करें कि भी $5 पर मंथ आ रही है सब. See, it depends on the company. It may be you make an assumption on a per user basis, if that makes sense. Or you can also say a typical लोग 20 अपने लाइसेंस खरीदेंगे तो typical customer will be on average some will buy 10, some will buy 30, on average is 20. So then you can figure out what is my how much a company pays us. So let me add one point. Sure, sir. या सो यार वो मेरी एक और मीटिंग है 1 मिनट में, तो मैं जल्दी से आपको जवाब देता हूँ, लेकिन अनवर साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं. हाँ, I'll continue. Thanks, Naeem. So we'll figure out maybe another session on go to marketing or something. Then we'll do. अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, फिर लंबा सेशन. हाँ, उसके बाद जब आप वापस आ जाओ उसके बाद कर. ठीक है. चलो मैं आप Have a good trip then. Yes. Thank you very much, Naeem. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच. हाँ, पर या प्लीज कंटिन्यू. क्या कमेंट था आपका? ये सर, मेरा इसमें ना कमेंट ये था कि होता ये है कि एक कंपनी ने हमसे 2 माह कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ उन्होंने हमसे 3 यूजर्स की सब्सक्रिप्शन बाय की. सही है. और उसके बाद वो चौथे माह आते हैं और वो हमें कहते हैं कि भाईजान अब हमारे 12 यूजर्स हैं, और गिव अस योर एनुअल डिस्काउंट एंड गिव अस सब्सक्रिप्शन फॉर 12 यूजर्स फॉर 12 मंथ्स. बिल्कुल सही. तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को जब मैं देखता हूं तो आई एम सेलिंग देम 144 यूनिट्स. सही है. एंड देयर मंथली सब्सक्रिप्शन एंड 12 into 12 लाइक दैट. और लेकिन अगर वो फर्स्ट मंथ में मुझसे आए हैं तो उन्होंने 3 यूजर्स की 1 महीने का पे किया. तो आप मैं आपका सवाल समझ गया. आप जो है ना, जो मेरा ख्याल है, जो मेरी एक्सपीरियंस भी है इसमें, कि आपका पर यूनिट जो है ना वो ये पर यूजर होना चाहिए, क्योंकि उसी से रेवेन्यू आ रहा है आपका. नंबर 1 पर यूजर. ठीक है कि भी वो नंबर ऑफ पर यूजर जब आप इंक्रीज करेंगे पर कंपनी या पर मार्केट जो है वो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फी जो है वो थोड़ा सा कम होगी.
बनिस्बत नॉर्मल के स्टैंडर्ड की, दैट डजंट मैटर। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि भी आपका रेवेन्यू जो है पर यूजर है, तो आपने उसको ये देखना है कि उसको पर यूजर को साइन अप करने के लिए आपके पास कितनी एफर्ट आएगी। ये जब यूनिट इकोनॉमिक्स देखते हैं, ठीक है, कितने साइन अप के लिए वो कितनी एफर्ट हुई है, वो कितना पैसा खर्च हुआ। नंबर 2 जो है, आपने ये देखना है कि अब जब वो यूजर ऑन बोर्ड हो गया है तो वो आपको कितने पैसे आपको पास आ रहे हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए आपका खर्चा कितना आ रहा है। उसमें जो खर्चा देखते हैं वो आप ज़ाहिर, आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड SaaS सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनके सर्वर वगैरह की सारी जो है वो नंबर ऑफ यूजर्स के साथ डिवाइड करेंगे और फिर उसमें ये देखेंगे आपका ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी डिवाइड करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के भी 2 साल में आपके नंबर ऑफ यूजर जो हैं वो 500,000 होंगे, ठीक है। आपने नंबर ऑफ यूजर में 500,000 में आप ये देखना है, सोचना है कि आपका पर यूजर एवरेज जो है वो आपका क्या रेवेन्यू होगा कि $5 के बजाय शायद वो $3 हो पर मंथ जो है, या $3 के बजाय $1 पर मंथ, डजंट मैटर व्हाटएवर दैट वन इज। और आपने देखना है कि उस वक्त जब आपके 500,000 जब आपके यूजर्स होंगे, आपकी जो टीम जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कितनी होगी। तो ये सब फैक्टर जो है ना वो आपके यूनिट इकोनॉमिक्स में आएंगे। लेकिन जो मेन यूनिट होगा जो आप सवाल पूछ रहे थे, तो मैं समझता हूँ वो यूनिट जो है वो जितना भी एटॉमिक लेवल पे हो उतना ज्यादा अच्छा है, जितना भी छोटा हो उतना ज्यादा वो पर यूजर है, जो मैं समझता हूँ। Very ठीक right. है, And per user per month, basically, right, हाँ sir? हाँ, पर यूजर पर मंथ, बिल्कुल एब्सोल्युटली Per month. पर Right. यूजर पर मंथ। Very right, sir. Thank you, sir, नेक्स्ट for the क्वेश्चन, clarity. बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। यार जरा डोंट हेजिटेट, ये आप अपने वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मलिक अमान बात कर रहे हैं आप? जी जी, मलिक अमान बात कर रहा हूँ। जी, आई एम मलिक बहुल कुरैशी, स्टार्टअप टीम कोऑर्डिनेटर फ्रॉम जिंदगी प्राइस एंड आपकी वर्क कार्ड एंट्री पर सिलेक्शन हुई थी टीचर्स के लिए। जी जी बिल्कुल हुई है। तो आपकी पार्टिसिपेशन, जो टीम की पार्टिसिपेशन है वो कंफर्म करनी थी। जी जी, वो मेरा 2 फ्रेंड्स है। यार ये आप तो अपने जो कंफर्म आप पर्सनल दोबारा अपने पर्सनल सवाल जो है, जिंदगी इवेंट के लिए जी जी ये आप लोग अपने पर्सनल जी जी, वो तो पेशावर पे है कि या जीके पे नहीं। सॉरी। अच्छा, वो उनको कॉल आई थी। Sir, can I proceed with the question? हाँ, या प्लीज गो अहेड। So my name is Sheroz Ali and I'm the founder of Zarib Aramdad and CEO. सही, What we're doing is we are basically enabling farmers to international markets, और उसके अंदर we are keeping the ownership with the farmers. We are not taking away the ownership of the produce from the farmers. So they're able to earn the premium, whatever we get from the premium markets. So sir, basically ये जो हमारा सारा model है हमारा, this is going to get onto tech, but initially we are planning to launch it through WhatsApp. As farmers, I've been dealing with farmers for the past 4 years. तो वो WhatsApp पे बड़े मतलब उनको उसका यूज आसानी से आता है। वो लोकेशन शेयर करना जानते हैं, वो उसके ऊपर मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स लेना और देना जानते हैं, सारी चीजें बिल्कुल सही है, समझते हैं। बिल्कुल सही है। तो टेक डिप्लॉयमेंट हमारा जो प्लान है वो है 2 साल बाद का, कि जो हमारे फर्स्ट कंज्यूमर्स आ रहे हैं हम उनको यूज टू कर दें इस सारे प्रोसेसेस से, और फिर हमको स्लोली स्लोली करके अपनी ऐप पे लेकर आए। बट एट a lot of places I'm getting these reviews and remarks कि you should get them on the platform from the day one. लेकिन why we are not getting why we are not looking into it is, एक तो आपकी ऐप की डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसको बनाने का उसको मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा है, जो कि एक बिजनेस के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा So, ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। ले जाते तो देखिए, आपकी सोच बिल्कुल सही है, आप बताइए। हाँ, commission आप आपकी आवाज कट रही है, दोबारा दोबारा से सवाल पूछना पड़ेगा। ज्यादा हो जाएंगे। आपकी आवाज कट गई थी, आप सवाल दोबारा, लास्ट कि सेंटेंस उस दोबारा सिर्फ बोलिए। एक वैल्यू हाँ, मतलब उस सिर्फ एक कॉस्ट से हम लोग लॉस की तरफ जाएं, या फिर हम लोग सस्टेन करके 2 साल। अच्छा था। तो बेहतर यही है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि अभी 2 चीजें आपको कंसिडरेशन है यहाँ पे। एक तो आपने बताया कि जो आपका जो कस्टमर बेस है, सॉरी सर, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ, अब मैं दोबारा से कहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं कि भी एक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है वो
कस्टमर बेस है उनको पता है कि व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करना है। आज वो व्हाट्सएप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको व्हाट्सएप के जरिए जो है उनको हेल्प करें पहले, ठीक है, अपनी कस्टमर बेस बढ़ाते जाएं। नंबर 2 जो है, आप वो ऐप डेवलप के साथ जो है आपको उनको ऐप पे लेकर आना है, क्योंकि ऐप के जरिए आप ज्यादा उनको सर्व कर सकते हैं। तो होता ये है कि जब आप ऐप तैयार कर लोगे, then you start introducing that app to the same user base जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ उसमें से जो है वो जल्दी से आपकी ऐप के ऊपर आ जाएंगे, कुछ जो है वक्त के साथ आएंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि आजकल भी जो है बात स्मार्टफोन यूज करते हैं और बाद अभी भी फीचर फोन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फील कंफर्टेबल। मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा वाला, ये नहीं कि उसका पैसे नहीं है, वो काफी उम्र तक, काफी देर तक वो सिर्फ फीचर फोन इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था स्मार्टफोन के साथ। तो कुछ ऐसे भी होंगे, लेकिन आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। कीप ऑन गोइंग विद व्हाट्सएप अप्रोच, बट गेट योर एप्लीकेशन डन एज फास्ट एज पॉसिबल एंड देन स्टार्ट मूविंग देम स्लोली टू योर एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा सर, द मेन कंसर्न आई हैव इज कि जो इन्वेस्टर्स है ना, जो कि मुझे इन्वेस्टर रेडीनेस के ऊपर नहीं या तो आप फिर उसको ये स्टोरी इन्वेस्टमेंट, बता दें ना, देखें आप उनको स्टोरी बता दें कि भी वो बाय नहीं करते देखें स्टोरी इन्वेस्टर सर। क्या। आपको मैं समझ गया, मैं टाइम की वजह से जल्दी जवाब दे रहा हूँ कि इन्वेस्टर जो है वो कंसर्न ये इस वजह से है कि भी आप जो कस्टमर जो आप लेके चल रहे हो व्हाट्सएप पे, वो आप लूज कर जाओगे। आप उनको बताओ कि वो कस्टमर जो है वो अब व्हाट्सएप पे तो आ गया आपके साथ, ऐप के साथ नहीं है अभी, लेकिन व्हाट्सएप पे आ, लेकिन आप उनको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इतनी आसान नहीं उनके लिए स्विच करना या लूज करना किसी और जगह जाना, ठीक है। दैट्स व्हाट दे केयर अबाउट। और फिर यह है कि जब आप उनको समझा देंगे कि भी हमें ऐप भी जो है वो हम जल्द से जल्द बनाना चाह रहे हैं और बना लेंगे, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट के बाद जो है, और उसके साथ जो है फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हम उसको लेकर, जब आप स्ट्रेटजी के तौर पे पेश करोगे नहीं ये, तो उनको समझ आएगी, उनको ये भी समझ आएगी पाकिस्तान में जो लोग जो है वो अडॉप्शन टू टेक्नोलॉजी का खासतौर पर फार्मर लेवल पे इतनी ज्यादा तेज नहीं होगी, तो दे विल अंडरस्टैंड कि भी आप यू आर वेरी थॉटफुल अबाउट इट, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी आपको अच्छा सर, कैन वी चैलेंज आस्क नहीं है क्वेश्चंस अभी? अबाउट रिलेटेड टू हाँ पार्क हाँ एंड पार्क बताइए, एंजल्स? बताइए क्या करें, क्या सवाल है? सर बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अ सिलेक्शन क्राइटेरिया कि पार्क एंजल्स की जो अब वो और मैंने शॉर्टलिस्ट हैं। आपको कल कहा था ना कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो वो मैं आप उसमें पब्लिश करूंगा अभी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में, ठीक है। ये उबैद। थैंक यू सर। सर वो नेचर ऑफ इन्वेस्टर पूछना था कि वो इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे या जो चीज चल रही है मार्केट में उस पर फोकस करेंगे? हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें आपको जो भी नईम जफर ने भी बात की थी कि भी आपका जो सोल्यूशन जो यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ताकि वो जो कस्टमर जो है जो आपका इस्तेमाल करे वो कहीं और जगह ना जाए, क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है। अगर यूनिक होगा तो आपके साथ रहेगा, कि भाई वैल्यू यूनिक जो है वो आपके साथ ज्यादा उनको मिल रही है बनस्बत किसी और की, इवन अगर उनको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, कि कोई कस्टमर कोई और किसी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है या कोई और मैनुअल प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसके को ज्यादा वैल्यू नजर नहीं आ रही, यूनिक वैल्यू नहीं आ रही, तो वो आपकी प्रोडक्ट पे आएगा नहीं और आपको पे नहीं करेगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भी हमेशा देखिए आपकी सर्विस जो है वो यूनिक होनी चाहिए, कि कोई और ज्यादा ऊपर नहीं कर रहा हो। जितनी यूनिक होगी उतने ही आपके चांसेस सक्सेस के ज्यादा हैं, उतने चांसेस आपके रेवेन्यू बनाने के ज्यादा हैं, उतने चांसेस आपको इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट मिलने के ज्यादा है। तो यस, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। ठीक, सही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मोहतशम बात कर रहा हूँ। I'm the founder of Salam Kids TV, which is the OTT streaming platform for children. सही है। सवाल मेरा जो है वो यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में है। एक प्री लॉन्च प्री रेवेन्यू स्टार्टअप के लिए जो कि अपना रेवेन्यू मॉडल फ्रीमियम रखना चाह रहा हो, वो अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स पे कैसे एक्यूरेटली या प्रिसाइजली काम कर सकता है। क्योंकि मिस्टर नईम ने जो भी बात की थी कि आपका जब बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है तब आप इस फॉर्म में आते हैं कि आप एक हाँ, एग्जैक्ट तो फिगर। उसमें ये देखिए कि हमेशा कोई भी स्टार्टअप होती है 2-3 साल तो
वो स्टार्टअप के जो है वो कैश फ्लो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। मतलब ये है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, आपका रेवेन्यू नहीं, शुरू में तो रेवेन्यू होता ही नहीं है, और रेवेन्यू होता भी है तो इतना नहीं है कि आप आपके कैश फ्लो को पॉजिटिव करें, ठीक है। तो उस दौरान जो है, उसके दौरान जो है वो आप की कोशिश यही होनी चाहिए कि कैसे लीन एंड मीन आप अपने उसको ऑपरेशन को रन करें, और कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप लॉन्च कर रहे हैं उसको उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि वो वही आपको जो है वो कस्टमर देगा और उसको मेंटेन रखेगा। क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को लीन मीन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी जगह आपने कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद गए हैं, तो आप जरूरी नहीं कि आप सरीना होटल में ठहरें। आप कोशिश कीजिए कि ऐसे होटल में ठहरें जो कि जाके उसके पर रेट जो है वो कम हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो लीन एंड मीन रन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। जो इन्वेस्टर जो है, और आप खुद भी जानना चाहोगे कि जब हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाता है और ग्रो कर जाता है, कि उस वक्त हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स इतना अच्छा होगा कि हम प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब ये है कि जब आपका रेवेन्यू इतना हो जाए कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की साइड पे आ रहे हैं, अब आपको ये देखना है कि भी ये प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल जो है ना, ये सस्टेनेबल है और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और ज्यादा जो है, उसके लिए यूनिट इकोनॉमिक्स होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी हो ज्यादा बेहतर हो। जैसे नईम ने बताया, बल्कि शारिक ने भी किया, कि उसको आप रिवाइज करते रहते हैं। जैसे आप लर्न करो तो उसको रिवाइज करते हैं, बिकॉज यू वुड नो समथिंग बेटर, you may find something cheaper or way of doing it, both ways, and I think you want to revise, continue to revise that model, ठीक है। तो फिर एंजल राउंड के लिए इसका मतलब है कि यानी we are not supposed to be giving any specific figures to the investor, right? नहीं, एंजल राउंड के लिए आपको एक मॉडल जरूर शेयर करना चाहिए कि जब हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, दिस इज हाउ द यूनिट इकोनॉमिक्स इज गोना लुक लाइक, ठीक है ना। उससे फिर एंजल इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार बंदे ने जो है वो होमवर्क किया हुआ है। सही सही, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। हसैन बलोच, आपका हाथ खड़ा हुआ है। हसैन बलोच, आप म्यूट पे हो। All right. My name is Hussain and I'm the part of Super Butler. Exactly मेरा यही सवाल था जो मैं आपसे करना चाह रहा था, इससे पहले कि वो हमारे Alright, तो मुझे इसमें एक चीज आपसे कंफर्म करनी थी कि मैं अब फाइनेंशियल फोरकास्ट जो है वो प्रिपेयर करता हूँ, और नेक्स्ट 2 इयर्स जो है वो मैं अर्न नहीं करता, मैं प्रॉफिटेबल नहीं बनाता। मुझे सवाल सिर्फ ये करना है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए क्या ट्रैक्शन होती है? क्या वो उस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं जो बहुत जल्दी से जो है वो प्रॉफिटेबल में आती हो, या उस प्रोडक्ट को लेते हैं जो टाइमली जो है वो अपना टाइम लेती है, देन उसके बाद जो है वो 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद जो है वो बहुत ह्यूज जो है वो प्रॉफिट करती है? मुझे इसका सिर्फ आंसर। हाँ जी, जो इन्वेस्टर जो होता है, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो या बीसी हो, दे ऑल इंटरेस्टेड टू मेक मनी, ठीक है। और they all interested to make money substantially. That's why they are investing in this high risk path, which is startups. ठीक है। अच्छा, जब पैसे जो बनते हैं किसी भी कंपनी के जो हैं, वो एक तो तरीके से ऐसे हैं कि भी आप कंपनी में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट पे शेयर करते हैं, उससे पैसे बनते हैं। वो मॉडल नहीं इस्तेमाल होता स्टार्टअप में। स्टार्टअप में मॉडल इस्तेमाल होता है कि वैल्यूएशन क्या है कंपनी की। अब कंपनी की वैल्यूएशन जो है ना, वो डिपेंड करती है बहुत सारी फैक्टर्स में। वैल्यूएशन जो है, जो डिटरमाइन होती है, कोई और कंपनी आपको एक्वायर करती है जब आपको खरीद सकती है, या आप पब्लिक जाते हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपकी शेयर की वैल्यू कितनी है, तमाम शेयर को मल्टीप्लाई करके आपकी टोटल मार्केट वैल्यू क्या है। ये जो दो वैल्यू जो है ना, ये मैटर करते हैं इन्वेस्टर के लिए और आपके लिए भी। आप जो लोग प्रॉफिट को शेयर करने, वो स्टार्टअप का बिजनेस नहीं है, वो स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस वो चल रहे हैं, ठीक है। आपने इस तरह सोचना है कि आपकी मार्केट वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ती है। मार्केट वैल्यू बढ़ती है कि आपका रेवेन्यू कितना है और कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। जितनी तेजी से आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, उतनी मार्केट वैल्यूएशन आपकी ज्यादा होगी। और खासतौर पे अगर रेवेन्यू के साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, तो उसी हिसाब से उसकी
और उसकी मार्केट वैल्यूएशन और ज्यादा होगी। अब बास कंपनी जैसे अमेजोन जो है, जब वो पब्लिक गई थी और पब्लिक के जाने के बाद कुछ सालों तक जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं थी, लेकिन वो गई और उसका मार्केट वैल्यूएशन, क्योंकि उनका रेवेन्यू बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, ठीक है ना, बहुत तेजी से ग्रोथ। इस वजह से मेरे ख्याल है जो एयर लिफ्ट में जो इन्वेस्टमेंट आई थी 100 मिलियन की, क्योंकि उनका रेवेन्यू बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन उन्होंने वो उसको तो ख्याल कर लिया, लेकिन इसका ख्याल नहीं किया कि भी उसको प्रॉफिटेबल भी तो बनाना है। तो तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है कितनी तेजी से, आपकी टारगेट मार्केट कितनी बड़ी है, और तीसरा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। ये तीनों चीजें डिटरमिन करती है वैल्यूएशन। और उस वैल्यूएशन के ऊपर देखते हुए इन्वेस्टर सोचता है कि मैं यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी बड़ी टारगेट मार्केट पे जा रही है, इसका रेवेन्यू बड़ी तेजी से ग्रो कर सकते, क्योंकि ट्रैक्शन बड़ी अच्छी है, तो जल्दी जल्दी साइन कर रहे हैं नए कस्टमर को, और वक्त के साथ जो यूनिट इकॉनमी जो इन्होंने शेयर किया है ये तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये कंपनी है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि वैल्यूएशन $2 मिलियन पे, आज मैं $100,000 इन्वेस्ट करूँ $2 मिलियन पे, ये तो 2 मिलियन की बजाय 200 मिलियन की हो सकती है, तो 100 टाइम्स से मुझे रिटर्न आएगा। तो ऐसे सोचते हैं इन्वेस्टर, समझ आए? Perfect, sir. Very nice. Thank you, sir. Perfect. One last question. कोई और सवाल है? सर इफ आई मे, बिल्कुल सही है, बहुत हम लोग सिलिकॉन वैली से जिन इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दे आर पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाले लोग हैं या what essentially जो हमारी कोशिश है वो हम तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स को लाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करें हमारी स्टार्टअप्स में, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में। हम चाह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, एक मिनट ठहरे, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी इन्वेस्ट करें पाकिस्तानी स्टार्टअप में। और हम चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक पाकिस्तानी जो हैं, जो कि ज़्यादातर ज़मीनों में और रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते रहे हैं, वो भी इन्वेस्ट करें। तो हम उन तीनों का नेटवर्क बना रहे थे और बना रहे हैं, और इन तीनों के सामने हम इन स्टार्टअप्स को जो है वो पेश करेंगे। वी वांट टू मेक श्योर दीज आर द गुड स्टार्टअप्स दैट हैव अ गुड टारगेट मार्केट, दे हैव अ गुड बिजनेस मॉडल, दे हैव अ गुड ट्रैक्शन। उनको हम सिलेक्ट करेंगे, फाइनल जो 10 होगी, और उनको जो है हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? अगर हम प्रेजेंट कर दें जो अभी स्टार्टअप इन तीनों चीज़ों पे नहीं क्वालिफाई कर रही, तो वो उनका भी टाइम ज़ाया होगा, हमारा भी टाइम ज़ाया होगा, इन्वेस्टर का भी टाइम ज़ाया होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि सिलेक्ट उन स्टार्टअप को करें जिनकी टारगेट मार्केट बहुत अच्छी साइज की है, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो प्रोडक्ट जो है उसकी अभी ट्रैक्शन बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, अडॉप्शन हो रही है, और उनकी अच्छी स्ट्रैटेजी गो टू मार्केट। नंबर 3, जो उनका जो यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है कि भी वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बड़ी तेजी से जा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तीनों के अलावा जो है वो टीम का भी देखा जाता है कि हाउ कल द टीम, और कितने पैशनेट है टीम मेंबर्स हैं। सर ये तीन डिफरेंट आपने कैटेगरीज फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आपने बताई हैं, दे आर 3 टोटली डिफरेंट माइंडसेट्स। तो एक ही स्टार्टअप के लिए जिसकी एक ही स्ट्रेटजी है, जस्ट लाइक द वे यू मेंशन बिफोर, कि अगर आप एक गोरे को पिच कर रहे हैं उसके लिए कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, अगर एक पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड है उसकी अलग प्रायोरिटीज़ हैं, और एक लोकल इन्वेस्टर एट द एंड ऑफ डे मेरा एक्सपीरियंस, मुझे 40 इयर्स हो गए मेरी स्टार्टअप में, एंड आई हैव आल्सो रेज्ड अबाउट मोर देन $150 मिलियन, राइट। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो डजंट मैटर, दे आर ऑल ह्यूमन। एट द एंड ऑफ डे वी ह्यूमन, वी आर ग्रीडी पीपल। एट द एंड ऑफ डे वी वांट टू मेक मनी। अब डजंट मैटर आप किसी गोरे को ले लो, डजंट मैटर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी को ले लो, डजंट मैटर लोकल पाकिस्तानी, दे ऑल वांट टू मेक मनी। If you want to show that you make them, you gonna make them money, and they want to make a substantial money because they are taking higher risk in investing in early stage startups. जितना early stage startups होगा उतना उनका जो expectation होगा वो 60 to 100 times वो बनाना चाहेंगे पैसे, ठीक है ना?
वो क्यों करने चाहेंगे आपको सुन लें बात ये भी है, उनको पता है कि 6% से ज़्यादा स्टार्टअप्स कामयाब नहीं होती, तो वो जो है वो तकरीबन 8-10 डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें 2-3 स्टार्टअप कामयाब होती हैं, बाकी जो है वो नहीं कामयाब होती, तो उनके पैसे फिर भी अच्छे बन जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो उनके जो मॉडल है, जो जो एंजल इन्वेस्टर, जो सीजन एंजल इन्वेस्टर, उनका एक मॉडल है जिससे वो सक्सीड करते हैं। अगर वो उस मॉडल को ना फॉलो करें तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो तो बहुत जल्दी से निकल जाएंगे अपने भारत। मुझे लगता है इन्होंने बहुत पैसे कमा रही है, अब चाहते तो हैं कि इसमें गपशप हो, आप इसलिए ये बनाए। ये इरफान, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, इरफान नहीं, की अपनी बात चल रही अपनी थी। बातें करें, चले। हाँ जी मिस्टर अमर, आपने कल भी इस बात का जिक्र किया था और आज भी मेरे सवाल से पहले भी हाइपर ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टार्टअप, और वही आपको डिफरेंशिएट करती है एक सिंपल एक बिजनेस से। तो that's what I was like actually concerned about कि safe and secure and sustainability in a startup आजकल economical situations को देखते हुए, recession in the states उसको देखते हुए, elections और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे factors इस वक्त जो हैं, how do you think they are going to be like affecting a successful हाँ, fundraising देखें, for an अभी ये early आप stages खुद startup? सोचिए कि इस वक्त पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कम हुई हुई है। एक तो ओवरऑल दुनिया में ही जो इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप्स की थी कम हुई हुई थी, लेकिन जो चेंज हो रही है, बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। अब खासतौर एआई में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी स्टार्टअप पर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की अपनी सूरत हाल, जो लोकल सिचुएशन है, अनस्टेबिलिटी वगैरह है, और उसकी वजह से इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है, लोकल कस्टमर बेस की जो है, उसकी वजह से जो है वो लोग इन्वेस्टर घबराए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर ख़ास तौर पे आप स्टार्टअप्स को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब आप फोकस करते हो कि ना सिर्फ सर्व करना है अपने पाकिस्तान में, बल्कि बाहर भी सर्व करना है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान में, तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि भी चलो ठीक है, इकॉनमी सिचुएशन 2 साल के बाद भी ऐसी ही है पाकिस्तान में जो आज है, कि भी वो तो स्टार्टअप तो यही देखते हैं ना कि 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होने वाला है। तो वो कहे कि नहीं नहीं, इनका कस्टमर बेस तो अच्छा बन रहा है, दुबई में बन रहा है, सऊदी अरेबिया में बन रहा है, यूके में भी बन रहा है, किसी और यूरोपियन कंट्री में बन रहा है, ये चीज़ें देखते हैं वो तो फिर भी इन्वेस्ट करेगा ना आपके लिए। तो इसी वजह से जो है आपको मिटिगेट करना चाहिए, और बल्कि के अलावा जो है आपको लार्ज टारगेट मार्केट जो है आपको लेनी चाहिए, वो थिंकिंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इस वक्त। और जब वक्त आएगा, पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा, जब कस्टमर बेस और मिडिल क्लास और डेवलप होगी, तो उस पर फिर उसी प्रोडक्ट को जो है पाकिस्तान में भी आप देखिएगा रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगी। शुरू में कम करेगी प्रोड्यूस, इस्तेमाल जरूर करना है आपने, लॉन्च जरूर करना है पाकिस्तान में, लेकिन आपने तो कोशिश करनी है ग्रो करने की अपने रेवेन्यू, वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान करनी है, जितनी भी हो सके। थैंक यू सो मच। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल लेता हूँ। शारिक, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। जी बिल्कुल, रिलेटेड टू दिस अभी ये बात जैसे ऐड कर रहे थे, मैं यही चीज़ ऐड करना चाह रहा था और आपकी एडवाइस भी लेना चाह रहा था कि व्हेन यू आर रजिस्टर्ड कंपनी इन पाकिस्तान, वो तो ऑब्वियसली हर कोई होगा, सो इट्स क्वाइट इजी टू रजिस्टर अ कंपनी इन यूएस एज वेल और यूके एज वेल। वी डिड द सेम थिंग, अंडरस्टैंडिंग के इन्वेस्टर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो। इन द यूके इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग, यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट है स्टार्टअप में, तो दे प्रोवाइड सीड एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसके अंदर टैक्स रिलीफ होता है 50%। ये इन्वेस्टर को टैक्स रिलीफ मिलता है अगर वो यूके का इन्वेस्टर है। क्या इस तरह की स्कीम कोई यूएस में भी है कि अगर हम लोग वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और वहाँ पे कोई इस तरह का टैक्स रिलीफ हो, सो वी कैन डू दैट एंड वी कैन गिव दैट enticement to the investor as well? हाँ, वो यूएस में नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे Okay. स्टार्टअप दे सक्सीड सो वेल एनीवे। अभी जिस तरह इंडिया में जो है वो टैक्स रिलीफ किया गया है जी बहुत बड़ा, तो उसकी वजह से बल्कि 300 मिलियन से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट आई है जस्ट विद। absolutely. तो बल्कि मैं वो आज यही शेयर कर रहा था कि वी वांट टू हैव दे सेम काइंड ऑफ टैक्स रिलीफ पाकिस्तान में भी। तो जो पाकिस्तानी स्टार्टअप जो हैं, वो डजेंट मैटर किस मार्केट से वो पैसे बना रही हैं, लेकिन है तो पाकिस्तान में, जो जब ग्रोथ होती है उनकी वैल्यूशन बढ़ती है, तो अगर इन्वेस्टर को पता है कि मेरी वैल्यूशन है जो 40 टाइम्स हो जाएगी या 30, और उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह जो है उसके ऊपर कुछ रिलीफ है, तो वो दे विल बी लॉट मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस वैल्यू रादर देन अदर वैल्यू। खासतौर पर अब रिटेल में इन्वेस्टमेंट जो है
इतनी अच्छी नहीं रही जितनी अब इसमें Absolutely. तो इंशाल्लाह ताला हालत बेहतर होगी. With that said, I think we should end the call. I need to go as well. So thank you very much for joining, and now I'll make the recording available as well. और इसको फिर follow करें इंशाल्लाह. अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम. Thank you so much, Allah Hafiz. हाफ़िज़. Thank